Hello, welcome everybody. I'm Bhavesh Jain here. Let's start with today's lecture. I'm starting with today standard 7. The topic will be about agriculture, chapter number 9. Okay, so standard 7, agriculture, and chapter number 9. Chalo, okay. So again, हमेशा की तरह I'll be sharing screen so that you'll be easily understand. Chalo, 9, agriculture, standard 7. See, firstly, in the start of the chapter, there is one photo which depicts so many stories. Firstly, if you can observe, there is one house here, farmer, farmer's wife, probably, farmer's daughter, two daughters. This is kettles, crops, and these are goats, dog. So basically, what you can get this idea of from this image is they are very connected to nature. Okay. So what do you see in the picture? I see there is whatever I told you, house, cattle and all. Why has family kept goats and hens? The goats का मीट होता है और hens से egg निकलता है, तो वो दोनों commercial purpose के लिए रखे गए. Which implements of implements क्या होते हैं? Some what do you suggest? Some just a second. Yeah, there is some plow, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं. This is the wheel and this is some X. Okay, so these are the implements which I see. In what major occupation type will the activity shown here be included? It will be included in animal husbandry, dairy farming, okay, sheep and goat rearing. So these are the two major, and the farming itself. Okay, these are the crops. What could the owner of the house? Definitely, he seems to be the owner of the house. Which product shown in above picture do you use daily? Some people eat eggs. So this is the eggs. This is the eggs. You use milk daily. You use crops which are shown here daily. Trees which you can see daily, don't use it, but you can see it daily. So geographical explanation. What exactly is this? So in the picture shows above, we see a standing crop. Is there right back a plowshare. This one, yeah, this one. From this, it becomes obvious that this is what farmer's house. ये खेती करके आया है और ये farmer का घर. No doubt. Farmer keeps hen, sheep, goats. Farmer ये सब रखता है. सिर्फ खाली crop नहीं उगाते. आजकल के modern farmers सब रखते हैं. जैसे cattle, goats, sheep, hens वगैरह सब. ठीक है. They are also seen in the picture, cattle वगैरह. He get milk यहाँ पे, eggs from the hen, and he sells hen and goat to earn money. He does all this for his subsistence. Subsistence का मतलब जीने के लिए. तो जीने के लिए जो भी चीज़ ये यहाँ पे कर रहे हैं, वो सब उन लोगों को एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में आए. ऑल दिस ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन व्हाट नेचुरल फैक्टर. सब नेचुरल. देखो ये दूध बनाया गया नहीं, डायरेक्ट निकल के आ रहा है. हैन एग बनाया गया नहीं, डायरेक्ट हैन ने दिया. क्रॉप उग रही है, डायरेक्ट नेचर ने दिया. So these are what natural factors. All this fall under what? Agriculture. These occupations are supplementary to the activation of crops. See, सबसे मेन इनका जो रीजन होगा लिविंग का, वो है क्रॉप्स ग्रोइंग. क्रॉप्स ग्रोइंग तो है, बट उसके अलावा भी ये सारी एक्टिविटीज चल रही है. क्रॉप पे ही खाली निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि क्रॉप समटाइम्स मे बी गुड, समटाइम्स मे नॉट बी गुड प्रोडक्शन उन लोग का. तो इस वजह से टू हैव अ सस्टेनेबल लिविंग वी डू ऑल दिस अदर एक्टिविटीज विच आर सप्लीमेंट्री टू द मेन एक्टिविटीज. सप्लीमेंट्री क्या होता है? एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है और एक उसके नीचे होती है सप्लीमेंट्री एक्टिविटी. सो सी, एग्रीकल्चर इज अ वाइड स्कोप. यहाँ पे भी दिख रहा है एक फोटो में कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करने से नहीं होती, उसके अलावा भी जितनी चीज़ें वो सारी चीज़ एग्रीकल्चर के अंडर आती है. बेसिक नीड्स क्या है? फूड, क्लोथिंग, वाटर. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बराबर. तो फूड और क्लोथिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. क्लोथ कहाँ से मिलता है? सिल्क जो है वो भी एनिमल से बनता है. ठीक है. और फूड तो आपको पता ही, एनिमल्स प्लांट से आता ही. बिसाइड द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, रेयरिंग कैटल, शीप एंड गोट्स, मेंटेनिंग पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, चिकन वगैरह जो है, कीपिंग बीज, ठीक है, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्डरी, पिसिकल्चर, पिग फार्मिंग, एमो फार्मिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. तो दोस्त, एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स कल्टिवेशन नहीं है. एग्रीकल्चर कंटेन्स दिस ऑल थिंग्स. ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, उसके बाद रेयरिंग कैटल, शीप एंड गोट्स, पोल्ट्री फार्म बनाना, बी को रखना, सेरिकल्चर करना, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर. अच्छा, सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनाते हैं उसको मैं सेरिकल्चर बोलता हूँ. आगे मैं सब बताऊंगा डिटेल में, और ये सभी पूरे चैप्टर में डिटेल में आप पढ़ने वाले हो एक्जैक्टली होता है.
ठीक है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में क्या क्या यूज होता है, रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, एनिमल्स भी यूज होते हैं, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट मतलब जो ये सब जो है यहाँ पे जो फोटो में दिखाया है, जिन चीज़ों की वजह से मेरी एग्रीकल्चर आसानी से हो सकती है। तो मैन पावर तो लगता है, इंसान लगेगा, लेबर लगेगा, एनिमल्स जानवर लगते हैं, बुलक कार्ट्स वगैरह लगेगा, इम्प्लीमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कुछ चीज़ें रहती है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एम्प्लॉयड समटाइम्स, हर एक के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब क्या, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना, वो सब एडवांस। इन एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन, भले ही ये सब मैं एक्टिविटी करता हूँ, but cultivation of crops is considered to be main and the most important occupation. ओके, अब ये देखो, गिव इट अ ट्राई बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये एक चीज सामने आएगी कि ये जो पहले के लोग थे वो इस तरह की फार्मिंग करते थे, फिर धीरे धीरे बुलक का इस्तेमाल करने लगे। पहले हम लोग हाथ से करते थे, फिर बुलक्स यूज करते, देन आ गया क्या, ट्रैक्टर। पहले इस तरह का इरिगेशन सिस्टम था, फिर धीरे धीरे स्प्रिंकल वाटर आया, अब ड्रॉप वाटर सिस्टम आ रहा है। उसके बाद पहले ऐसा एक घर में एक बनाया करता था, फिर एक टोकरी में ऐसा हैंड्स रखते थे। आज एक पोल्ट्री पूरी फार्म है, तो यहाँ से पोल्ट्री फार्म, तो इसको मैं पोल्ट्री। तो आप देखेंगे कैसा डेवलपमेंट है, फ्रॉम दिस टू दिस एंड टू दिस। सो दिस इज नथिंग बट द डेवलपमेंट। ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ओल्ड तरीका है, ये नई टेक्नोलॉजी ये मॉडर्न तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लेबर कम यूज होगी, मशीनें ज़्यादा यूज होगी, यहाँ पे आपका पानी बचेगा, क्रॉप भी वेस्ट नहीं होगी, और यहाँ पे एक ही साथ आप बहुत सारी पोल्ट्री रख सकते हो, बहुत सारी हैंड्स रख सकते हो, और बहुत सारा प्रोडक्शन मिलेगा एग्स का। ओके, चलो। तो इन द अबव पिक्चर वी सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मैंने बोला ये सब पुराना है और ये सब क्या है, नया है। ओके, इन द पास्ट primitive man had to wander in the forest to sustain himself on the collected forest produce। ठीक है, फॉरेस्ट में जो ही निकलता था, अब यहाँ से जो निकल रहा है उन लोग पे वो सस्टेन करते थे, उसके अलावा उन लोग का और कोई मोटिव नहीं था, बस यहाँ से थोड़ा सा ये जो उगा हुआ है वो ले लो और वही खाओ, उसमें जियो। ये कुछ नया उगाने का, कुछ नया इनोवेशन करने का ट्राई नहीं करते थे, क्योंकि पहले इतना दिमाग चलता ही नहीं था। बट धीरे धीरे इंसान इन्वॉल्व हुए एंड देन स्टार्टेड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद लेटर हम लोग आर्ट ऑफ कल्टिवेशन देखे, मतलब जो फॉरेस्ट में मिल रहा है वो नहीं, हम लोग खुद अभी उगाने लगे, और हम लोग खुद उगाने के बाद व्हाटएवर प्रोडक्शन वी आर गेटिंग, वी आर यूजिंग इट फॉर आवरसेल्व्स एंड आल्सो फॉर द बिजनेस। अब एग्रीकल्चर बिजनेस भी बन गया धीरे धीरे। देखो पहले तो एग्रीकल्चर था ही नहीं, तो फॉरेस्ट से जो मिलता था वो, फिर धीरे धीरे मैंने कल्टिवेशन सीखा मेरे लिए, वो कल्टिवेशन सीखने के बाद आई स्टार्टेड द बिजनेस ऑल्सो, मतलब दूसरों के लिए भी उगाने स्टार्ट किया। सो दिस इज हाउ द एग्रीकल्चर डेवलप। ओके, he also started obtaining a number of products to floriculture भी होने लगा, फिर horticulture होने लगा, rearing animals, pisciculture होने लगा। ये exactly क्या है ऐसा बताऊंगा। तो flori and horti are one the almost similar। flori you can say it's related to flowers and horti is maintaining flowers, उनका और detailed। तो horti is a big branch, flori is a small branch, ऐसा हम लोग करें। pisciculture is nothing but the fish farming, fish farming is pisciculture। ठीक है, abandoning nomadic life, nomadic मतलब पुरानी लाइफ, तो he undertook what occupation related to agriculture at the सेम प्लेस पे मैं दूसरा भी करने लगा, जैसे फ्लोरी, हॉटी वगैरह। उसके बाद नाउ लेट अस गेट इंट्रोड्यूस्ड टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। जैसे अभी ये सब नाम दिए, तो एग्जैक्टली है क्या, तो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस कहता है अंडर द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। तो वी इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑक्यूपेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। चलो उसके आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, दिस प्रोडक्शन अलाइड एक्टिव, अलाइड मतलब जुड़ी हुई, यू कैन नॉट सेपरेट दैट, अलाइड इज कॉल्ड जुड़ी हुई। एनिमल हस्बेंड्री, rearing different animals and obtaining various products from their subsistence is core of the animal husbandry। अब देखो नाम से पता चल रहा है एनिमल एंड हस्बेंड, मतलब एक एनिमल का ऐसा एक फार्म होगा। नॉर्मल फार्मिंग में क्या है, वो क्रॉप्स है वहाँ पे, तो क्रॉप्स की जगह एक एनिमल अगर रहते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री उसको बोला जाता है। तो मैं डिफरेंट एनिमल को रियर करता हूँ, मतलब उसको ग्रो करता हूँ, उनको रखता हूँ, ताकि उनसे मुझे वेरियस प्रोडक्ट्स मिले फॉर देम, फॉर सब्सटेंस, मतलब फॉर जीने के लिए। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है वो डेयरी फार्मिंग। अभी देखो डेयरी आज आप हर दिन यूज़ करते हो, मिल्क हर दिन यूज़ करते हो, घी, बटर वगैरह वगैरह, जितना भी कुछ है, ये सब डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, पनीर, सब डेयरी प्रोडक्ट। चीज़ पसंद होता है ना, चीज़ सैंडविच वगैरह, वो सब चीज़ कहाँ से आती है, डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्मिंग कहाँ से आएगी, मिल्क एनिमल्स। तो मिल्क एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, आर द एनिमल्स विच गिव मिल्क। तो कौन से, एक काउज है, ऑक्सन है, बफेलोज है, are reared for agricultural purpose. However, rearing rich animal and animals which can be employed in farming is also an both दोनों। ऑक्सन बफेलो को मैं दूध नहीं ले सकता, ऑक्सन बफेलो एग्रीकल्चर में काम, बट काउ कैन बी यूज्ड इन बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर मिल्क। ओके, so that's why it is known as what, mixed farming। तो दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए वो मिक्स फार्मिंग है। It has become quite commercial in recent times in India. It has started changing recently. Commercial dairy farming is mainly undertaken for meat and milk। For meat and milk के लिए commercial farming किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शीप एंड गोट रेयरिंग, उसमें सेकंड आता है शीप। देखो शीप से मुझे वूल मिलता है, पक्की बात है, सबको पता है। शीप के जो ऊपर हेयर रहते हैं वो उससे मुझे क्या मिलता है, वूल मिलता है। ठीक है,
और गोट से मुझे क्या मिलेगा, मीट मिलेगा डेफिनेटली। मीट कहाँ से मिलेगा मुझे, गोट से। मीट काउ से भी मिलता है और गोट से भी मिलता है, बट मेजर प्रेफर कौन करता है लोग, गोट प्रेफर। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है और ये हिली ट्रैक्स पे ज़्यादा होती है, सेमी एरिड जहाँ पे मतलब कोई और कल्टीवेशन नहीं हो सकता, इस वहाँ पे शीप और गोट रेयरिंग की जाती है। जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, हिली एरियाज है, आप देखेंगे लद्दाख वगैरह साइड में शीप और गोट रेयरिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उन लोग शॉर्ट ग्रासेस, देखो वो साइड पे है ना, जितना हम नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे इतना ट्रीज वगैरह नहीं होता, इक्वेटर के पास जितने से आएंगे वहाँ ट्रीज वगैरह, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट ग्रासेस होंगे, श्रब्स होंगे, एसेसिया भी शॉर्ट तरह का प्लांट होता है। तो वो सब जो है वो रिमोट हिली एरियाज में होते हैं, रिमोट रूरल एरियाज में, और वो अवे फ्रॉम है अर्बन सेटलमेंट्स। तो वहाँ पे क्रॉप्स उगा के मतलब नहीं है ना, क्रॉप्स वैसे तो उगे भी नहीं, अगर सपोज उगाएंगे तो मार्केट भी नहीं है, मार्केट इज वेरी वेरी फार, क्योंकि वो रिमोट हिली रीजन में है। So that's why they do sheep rearing. The sheep rearing is carried out for wool and goat is for meat. Okay. पोल्ट्री मतलब जितने भी चिकन एग्स ये सब जो निकलता है ना, पोल्ट्री उसको बोलते हैं। मुर्गियाँ की जो रहती है फार्मिंग, उसको मैं पोल्ट्री फार्मिंग बोलता हूँ। कीपिंग हैंस और अदर फाउल मतलब मुर्गी टाइप्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। देखो बहुत टाइम से चल रही है ट्रेडिशनल, मतलब एक ये और फिशिंग और पोल्ट्री, ये दोनों बहुत पुराने ज़माने से चल रही है। एनिमल को काबू करने में टाइम लगा, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री रिसेंट हुई, बट पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री एंड फिशिंग इज वेरी वेरी प्रिमिटिव। टुडे इट इज कैरिड आउट एज हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन। हर घर में कोई ना कोई गाँव साइड अगर आप देखेंगे तो मुर्गियाँ रखते ही है, ठीक है। तो रनिंग अ पोल्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयर, क्योंकि वो पोल्ट्री का केयर बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी भी करते हैं हम लोग, इस वजह से लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड। फॉर द साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, हर चीज़ में इन लोग देखना है, साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड, ये हर चीज़ में बोला हुआ उन लोग ने, ठीक है। इन इंडिया दिस ऑक्यूपेशन जनरली लोकेटेड इन एरिया क्लोज टू बिग सिटीज, क्योंकि वो रेडी मार्केट वहाँ पे मिल जाता है। बड़ी सिटी के अगर आसपास में मैं पोल्ट्री खोलूँगा तो वहाँ पे मुझे रेडी मार्केट मिल जाएगा, और मैं अपने एग्स जो है या फिर जो चिकन वगैरह है वो जल्दी मार्केट में क्या कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। Some areas में रैबिट, पिग और एमू रेयरिंग इज आल्सो अंडरटेकन। एमू इज नथिंग बट अ बर्ड, एमू जो होता है वो एक बर्ड, एक तरह का ऑस्ट्रिच जैसा बड़ा बर्ड होता है, उनकी भी रेयरिंग होती है, ठीक है। रैबिट पिग भी सम डोमेस्टिक इन लोगों को भी बेचा जाता है, तो डोमेस्टिक पेट बनाने के लिए काम आता है। बी की मधुमक्खी जो होती है वो काफ़ी यूजफुल है, मधुमक्खी से मुझे शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपने अपने लाइफ में यूज़ किया ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो बीज क्या है, हनी कलेक्ट करने के लिए प्लांट्स के ऊपर जाती है। प्लांट्स का जो फ्लावर का जो बीज का वो पॉइंट रहता है ना, वो जिसमें कली टाइप्स निकलती है, वो उन लोग खा जाते हैं। वो खाने के बाद थोड़ा भी वहाँ पे भी कुछ छोड़ जाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बीज ने वहाँ से कुछ ले लिया, बीज ने वहाँ पे कुछ छोड़ लिया, तो बीज ने वहाँ पे कुछ छोड़ा, उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे फ्रूट्स निकलती है, क्रॉप्स वगैरह निकलती है, और जो बीज ने ले लिया उसमें उन लोग हनी और वैक्स दोनों डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हनी वो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, देखा होगा उसमें आप, हनी देखा होगा, उसके अंदर से हनी निकलता है। हमारे एक बार घर में आई थी, बहुत से इतनी सारी मधुमक्खी पूरा लेके, घर के बाहर मतलब खिड़की के बाहर थी, तो कैसे वो हनी निकलता है एग्जैक्टली मैंने एकदम ध्यान से देखा हुआ है उसमें। एनीवेज चलो बैक टू द टॉपिक। एज अ रिजल्ट द ट्रीज बेयर लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, किसके वजह से, पॉलिनेशन की वजह से, फ्रूट्स वगैरह जो वहाँ से निकलते हैं। इसलिए बी कीपिंग क्या है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, क्योंकि आप हनी भी अच्छा कमर्शियल प्रोडक्ट है, वैक्स भी अच्छा कमर्शियल प्रोडक्ट है, और हनी की वजह से जो फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं और जो एग्रीकल्चर में फ़ायदा होता है उसमें भी क्या है, कमर्शियल में फ़ायदा। फिजिकल जैसे मैंने बताया, फिश फार्मिंग इज नदी, एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब एक तालाब, तालाब में मैं अच्छे फिश के सीड्स डालता हूँ, ताकि वो फ्रेश वाटर की जितनी भी मछलियाँ हैं वो ग्रो हो जाए उसके अंदर सीड्स वगैरह डालने से, ठीक है। फिर वो फिश को मैं बेच सकता हूँ, और ग्रोथ ऑफ फिश आएगी तो मैं उसको क्या करता हूँ, बेच सकता हूँ, देन आई कैन अर्न मनी। सो उसको बोलते हैं फिशिंग एज अ फार्मिंग, और उस वजह से आई कैन अर्न समथिंग, ओके। और अपने खाने के लिए भी ऑफ कोर्स हो सकती है, हम तो नहीं खाएंगे बट जो खाते हैं उन लोग। तो अच्छा देखो, मैं पॉन्ड वगैरह करता हूँ तो वहाँ पे कोई क्रोकोडाइल वगैरह तो नहीं होंगे, तो एटलीस्ट वहाँ का सेफ है, मैं जो खुद तालाब बनाता हूँ या फिर छोटा तालाब है। बट अगर मैं सी वगैरह, नदी वगैरह में जाऊँगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रोकोडाइल मिल सकते हैं, बहुत सारे फिशेज मिल सकती है नंबर नंबर टाइप्स के, और बहुत सारे दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी के नीचे रहते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। सो उस वजह से वो सब क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और कभी कभी बार बहुत सारी ऐसी मछलियाँ आती है जिनकी मार्केट में कोई इतनी खास पैसों की वैल्यू है नहीं, इस वजह से पॉन्ड वाली जो खुद मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमर्शियली फिजिबल या फिर कमर्शियली वायबल। बट ये वाली जो मैं पकड़ रहा हूँ उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और डेफिनेटली मनी का गारंटी नहीं है उसमें। कौन से पिसिकल्चर में होता है, जैसे वाम रोहा है, इंडियन सैल्मन है, कोलम्बी है, एक्सेट्रा, रियर्ड इन फिश फार्म्स, क्योंकि ये सब की वैल्यू मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा है, ओके। एक और होती है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होता है, इज नथिंग बट ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है सिल्क वॉर्म,
ठीक है। सिल्क वॉर्म कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म आता है मलबेरी ट्रीज से। तो मलबेरी ट्रीज अगर आप उगा दोगे उस पर सिल्क वॉर्म आ जाएंगे। सिल्क वॉर्म से सिल्क माउथ निकलता है, जो उसके अंडे रहते हैं वो, उस अंडे या फिर कुकून से थोड़ा बहुत सिल्क का थ्रेड निकलता है। तो मलबेरी ट्री, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के बाद आया सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ के बाद क्या है? सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड से मैं क्या बना सकता हूँ? सिल्क वाले कपड़े बना सकता हूँ, ऐसे जब हम लोग पहनते हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट है। हावेवर सेरीकल्चर का जो स्कोप है वो सिल्क थ्रेड तक ही। सिल्क थ्रेड से जो क्लोथ बनाने की इंडस्ट्री है वो डिफरेंट होती है, वो सेरीकल्चर में नहीं आती। सेरीकल्चर में सिर्फ वो सिल्क वॉर्म के कुकून से मुझे सिल्क थ्रेड लेना है एंड दैट इज इट। तो वहाँ से वो मेरा सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही वही लिखा है जो मैंने अभी एग्जैक्टली हिंदी में बताया। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मलबरी, सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ एंड उसके बाद क्या होता है बॉस? सिल्क थ्रेड। ठीक है, सिल्क थ्रेड कुकून से आएगा। सिल्क मॉथ का जो होता है वो ये वेरी वेरी फाइन होता है, और ये रेशम का जो होता है ना, रेशम का धागा बड़ा मजबूत है, वही सिल्क का ही धागा है। फ्रॉम द वन एंड कैन बी सॉल्ट सिल्क क्लोथ। ठीक है, कैरिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून मैन्युफैक्चरिंग सिल्क, मैंने बोला कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। कौन सा नॉट इंक्लूडेड? जो धागे से मैं कपड़े बना रहा हूँ वो एग्रीकल्चर में नहीं आता है। हाँ, धागे तक एग्रीकल्चर में आएगा, सेरीकल्चर में। ओके, ठीक है। तो मैंने बोला लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज आर मेन फूड फॉर द सिल्क वॉर्म। तो सबसे पहले मलबेरी ट्री लगाओ, उसके बाद सिल्क वॉर्म आ जाएंगे। तो मलबेरी ट्री एक बार लगाने पे 15 साल तक रहता है दोस्तों। तो बार बार ट्री प्लांट करने का भी खर्चा नहीं। हेंस द एक्सपेंडिचर प्लांटिंग ट्री एवरी ईयर इज सेव। तो ये काफ़ी ईजी है। एक बार मलबेरी ट्री लगाओ, 15 साल तक रहेगा। उस पर सिल्क वॉर्म आएंगे, कुकून आएगा, कुकून से मैं सिल्क थ्रेड निकालूंगा, बेचो सिल्क आराम से। फिर एक होता है नर्सरी। नर्सरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, और दूसरे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। देखो क्या होता है, प्लांट्स बहुत सारे तरह के होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो मेडिसिन में यूज आएंगे जैसे एलोवेरा वगैरह। दूसरे ऐसे प्लांट्स है जो सिर्फ एरोमेटिक मतलब खुशबू के लिए, मतलब जो वहाँ का वातावरण खुशबूदार कर दे, वो होती है। दूसरे तीसरे होते हैं ऑर्नामेंटल, वहाँ से खुशबू में आती है, मेडिसिन के लिए भी यूज़ नहीं होती, बट डेकोरेशन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है वो। तो उस तरह के अलग अलग प्लांटेशन की भी जो फार्मिंग होती है उसको मैं बोलता हूँ नर्सरी। ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह जो भी उगाता हूँ उसका भी मैं बोलता हूँ नर्सरी। नर्सरीज बहुत अच्छे रिटर्न देती है क्योंकि प्लांट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और फ्रूट्स की भी वैल्यू आपको पता ही है कितनी ज़्यादा होती है। तो ये एक नर्सरी का फोटो। अच्छा, अब एक और नई टेक्निक है ग्रीन हाउस फार्मिंग, बट उससे पहले सारे के सारे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी फार्मिंग, जो काऊ भैंस वगैरह, गाय भैंस जो दूध के लिए मिल्च एनिमल्स होता है वो। और उसके बाद शीप एंड गोट ट्रेडिंग जो हिली एरियाज में होता है, और जो शॉर्ट ग्रास श्रब्स वगैरह पे ऐसे यहाँ पे रह जाता है वो शिल्प वूल के लिए होता है, गोट मीट के लिए होता है। उसके बाद पोल्ट्री में करता हूँ एग्स के लिए डेफिनेटली, और पोल्ट्री चिकन के लिए भी किया जाता है। वो अच्छे रिटर्न जाते हैं और काफ़ी पुराना है ऑक्यूपेशन है। बी कीपिंग से हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। तो हनी और वैक्स के लिए मैं बी करता हूँ। और बी कीपिंग रखने से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन से वी गेट लॉट नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिशिकल्चर फिश फार्मिंग, एक पॉन्ड में मैं फिश लगा देता हूँ, जो फिश मैं उगाऊंगा वही फिश उस पॉन्ड में रहेगी, कोई दूसरी अनवांटेड फिश नहीं आएगी। उस वजह से मेरा रिटर्न क्या है? गारंटी। मैं वैसे सी में करूँगा वहाँ पे गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है मेरे जो फिशिंग नेट में होगा उसमें। सेरिकल्चर क्या होगा? मैंने बोला मलबेरी ट्रीज, मलबेरी ट्रीज के पास सिल्क वॉर्म आ जाएंगे। सिल्क वॉर्म से मेरे को उसके अंडे मिलेंगे, सिल्क मॉथ होते हैं, सिल्क मॉथ से कुकून निकलेगा, कुकून में सिल्क थ्रेड मिलता है। ओके, और ये 15 साल तक जीते हैं। नर्सरी जो है वो होता है फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, और प्लांट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। सो इस वजह से मुझे क्या होता है? गुड रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब आता है ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग एक फार्मिंग का नया डेफिनेशन हो रहा है आजकल, और ये जनरली नर्सरी में ऐसा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नर्सरी में ग्रीन हाउस फार्मिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ फार्मिंग है, ये मॉडर्न एरा में चलती है, पहले के समय में ऐसे नहीं। इसमें क्या होता है? एक ग्रीन हाउस मैं बताता हूँ, एक नया हाउस बनाऊंगा ग्रीन हाउस ऐसे करके। उसमें मैं आयरन के पाइप्स लगाऊंगा, गैल्वेनाइज गैल्वेनाइज मतलब उसके ऊपर एक थोड़ी सी पॉलिश कर दूंगा ताकि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि आयरन पाइप से जंग लग सकता है। तो गैल्वेनाइज करूंगा, उसको पॉलिश कर दूंगा, और प्लास्टिक शीट लूंगा ऐसे। देखो ये गैल्वेनाइज पाइप है, ये जो दिख रहा है, और ये वाले जो है ना, ये है प्लास्टिक, प्लास्टिक की शीट। ठीक है, तो ये पूरा एक ऐसा मैं हाउस बना दूंगा, दिस पूरा ये हाउस। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आएगा। ठीक है, तो इसका होता क्या है? इसका मेन एम ये है, इट्स मेन एम इज टू कंट्रोल द पेस्ट। अगर मैं ये लगा दूंगा तो कोई कीड़े मकोड़े बाहर से आ नहीं सकते। वेरी गुड। उसके बाद कंट्रोलिंग वाटर, वाटर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहिए जितना ही दो, बारिश वगैरह आएगी नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद लाइट और टेम्परेचर को मैं कंट्रोल कर, ऐसा अंदर है तो टेम्परेचर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइट है तो लाइट इसके अंदर ज़्यादा नहीं आएगी। सो इस वजह से मैं ग्रीन हाउस फार्मिंग करता हूँ आजकल, ये काफ़ी चल रही है, मेजरली नर्सरी में यूज़ होती है।
ओके, तो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है। तो ये नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, बेसिकली क्लाइमेट, हीट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एज वेल एज नॉर्मल सॉइल का मॉइस्चर। ओके, हो गया। अभी आते टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसे पहले अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फार्मिंग होती है, और अलग अलग फार्मिंग कब डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके मेरा पर्पस क्या है, किस तरह की पर्पस है। मतलब मुझे अपने लिए चाहिए तो मैं नॉर्मल छोटी फार्मिंग करूँगा, मतलब वो प्रोडक्ट अपने लिए तो चाहिए और मुझे बेचना भी है, तो मैं हाई लेवल पे कमर्शियल फार्मिंग करूँगा। और उसके बाद लैंड यूज़ कैसा है वहाँ का, वो लैंड में कितनी हो सकती है फार्मिंग, कैसे फार्मिंग हो सकती है, सब्सटेंसेस वाले हो सकती है या फिर कमर्शियल वाली हो सकती है, तो वो सब मुझे देखना है। और अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द पर्पस एंड एम ऑफ द मेथड ऑफ फार्मिंग, द क्रॉप्स बीइंग कल्टीवेटेड, टेक्निक यूज्ड एंड लैंड यूज, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ वो भी। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे आ जाता है। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्म। सबसिस्टेंस में दो, इंटेंसिव और शिफ्टिंग। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक्सटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। तो एक इंटेंसिव, एक एक्सटेंसिव। एक इंटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा है कमर्शियल में, उसमें एक्सटेंसिव ग्रेन। दूसरा है प्लांटेशन फार्मिंग। एक मार्केट गार्डनिंग होती है और एक हॉर्टिकल्चर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हॉर्टिकल्चर क्या होता है, प्लांट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो सब्सटेंसेस देते हैं। सब्सटेंसेस में दो टाइप है, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। अच्छा, ये वाली जो है ये ट्रेडिशनल है, ये वाली जो है ये आज के ज़माने में है। इंटेंसिव फार्मिंग कैरिड आउट इन वन ऑन द सेम फार्म फॉर ईयर्स टुगेदर। इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो एक ही फार्म में बहुत बार एग्रीकल्चर होती है। एक ही फार्म में लेट्स से वो 5 से 10 साल उसी फार्म में एग्रीकल्चर होगी, उसको मिलता है इंटेंसिव फार्मिंग। बट शिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आज एक लैंड पे किया, फिर वो 3-4 साल तक उसको छोड़ दूंगा, फिर वापस उसके बाद दूसरी लैंड ले लूँगा, फिर वो जो पुरानी लैंड जो मैंने छोड़ी वापस 3-4 साल के बाद उस पर आ जाऊँगा। सो इट्स लाइक आई एम शिफ्टिंग द लैंड एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, एवरी ईयर अ न्यू एरिया इज चोजन फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि जो पहले वाला होता है ना, अगर मैं उस पर एग्रीकल्चर कर लूँ तो उसकी जो सॉइल की कैपेसिटी है वो यूज़ हो जाती है और वापस उसमें क्रॉप्स नहीं आए। इसलिए न्यू क्रॉप्स लाने के लिए मुझे नया जगह ढूंढना पड़ता है और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दूँ ताकि उसकी वापस क्रॉप्स की क्वालिटी मेंटेन हो जाए। तो 3-4 साल के बाद ये क्रॉप्स की क्वालिटी वापस अच्छी हो जाएगी, तो ये वापस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाऊँ। तो ऐसे 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 चलता है, तो मैं उसको बोलता हूँ शिफ्टिंग फार्मिंग। ओके, ओल्ड एरियाज आर अगेन यूज फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे आ जाते हैं फिर। तो अब इंटेंसिव फार्मिंग तो क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम अ मिनिमम एरिया। यही लाइन आपको याद रखनी है। अगर इंटेंसिव फार्मिंग क्वेश्चन है, दिस लाइन यू हैव टू राइट एटलीस्ट, के मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम मिनिमम। तो हाई प्रोडक्शन एंड लो यूज ऑफ लैंड। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। छोटे से जगह में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, देखो लार्ज पॉपुलेशन है और लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे पर हेड होल्डिंग क्या होती है, एकदम स्मॉल होती है। बहुत सारे लोग हैं और जगह कम है, इसलिए मेरी पर हेड होल्डिंग क्या होगी, हमेशा स्मॉल होगी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली सीन कहाँ होती है, डेवलपिंग रीजन। डेवलप्ड में नहीं, डेवलपिंग रीजन में इंटेंसिव फार्मिंग यूज करते हैं। फार्म प्रोडक्शन जो होता है वो सफिशिएंट होता है सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली के रिक्वायरमेंट की जितनी ही, उससे एक्स्ट्रा। मतलब ये कमर्शियल फार्मिंग नहीं, जितना मुझे चाहिए, मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए तो 10 किलो गेहूँ उग जाएगा इंटेंसिव फार्मिंग में, उससे ज़्यादा नहीं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कल्टीवेटर जो मतलब उगा रहा है वो एंड हिज फैमिली, उसकी जो फैमिली है टोटली डिपेंड करती है इस इनकम पे। सपोज अगर इसकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई या फिर क्रॉप आए और कीड़े ने मकोड़े ने खा लिया या फिर बाढ़ में डूब गए या फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई वगैरह वगैरह, तो ये क्रॉप्स के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता है। इस वजह से इन लोग क्या होते हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी खराब होती है और वो पुअर होते हैं। कौन, इंटेंसिव फार्मिंग वाले जो कल्टीवेटर होते हैं। ओके, देखिए नया तरीका आया है टेरेस फार्मिंग। देखो ये टेरेस जैसा बना, 1 2 3 4 ऐसे स्लोप बना है, तो क्या होगा इस वजह से ना, क्रॉप्स की जो वाटर के वजह से जो खराबी होती है वो नहीं होगी। और देखो यहाँ पे वाटर रुक गया, यहाँ पे वाटर रुक गया, यहाँ पे अब अगर वाटर नहीं होता तो ये पूरा बह के लेके जाता है, इसको भी बह के लेके जाता है, इसको भी बह के। सो एज टू अवॉइड द इरोजन ऑफ द क्रॉप्स और द सॉइल, टेरेस फार्मिंग इज यूज्ड नाउअडेज। ओके, तो इन दिस अभी तक वही चल रहा है इंटेंसिव। मोस्टली एनिमेट। अच्छा, एनिमेट एनिमेजी मतलब मैं प्रॉपर मेरा लेबर ही यूज करता हूँ, मेरी मेहनत ही यूज करता हूँ, कोई मशीन वगैरह यूज नहीं करता। अच्छा, बिसाइड द सीरियल्स वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट। इसमें सीरियल्स, मेजरली सीरियल्स होता है बट कभी कभी वेजिटेबल्स भी हो जाते हैं। अब आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये प्रिमिटिव टाइप है, दोनों प्रिमिटिव टाइप है एक्चुअली, इंटेंसिव एंड शिफ्टिंग। दिस टाइप इज दी प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिक्स इन डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली ट्रैक्ट्स, जहाँ पे भी हिल वगैरह है ना और जहाँ पे डेंसली फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज की जाती है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये एक मैकेनिज्म है। देखो ये क्या है, पहले ये उगा था तो फार्मर इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। काटने के बाद ये जो बच रहा है इन लोगों को क्या करेगा, आग लगा देगा।
तो आग लगाने के बाद ये भी बचा है वो भी जल जाएंगे। तो जलने के बाद इन लोग का कुछ बच जाएगा, जो पीछे राख वगैरह जो बोलते हैं उसको ऐश बच जाएगा, तो वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। ठीक है, मैंने सॉइल के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये सब आप देख लेना। तो मैन्योर बन जाएगा तो वापस उसकी क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स आ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स आ जाएगी तो धीरे धीरे क्रॉप्स वापस उगने लग जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है, प्रोबेबली 2-3 ईयर्स। एक बार उसको निकालने के बाद 2-3 ईयर्स उसको छोड़ दो, फिर वापस 2-3 ईयर्स के बाद आओ यहाँ पे, सो दैट यू कैन हैव अगेन कल्टीवेशन। तो यही होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यही जो मैंने हिंदी में बोला यहाँ पे इंग्लिश में। द फार्मर इनिशियली सिलेक्ट्स अ पीस ऑफ लैंड, उसके बाद कल्टीवेशन करने के लिए क्लियर द लैंड, जैसे cutting down trees, plants, removing the shrubbery and nuts. When the cut trees dry out, यहाँ पे he burns them. The leftover ash gets mixed in the soil and act as manure. जो बच जाता है इसको मैं जला देता हूँ, जलाने के बाद जो बच जाता है एश वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, मैन्योर बन जाता है। सोइंग और हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन। देखो वहाँ पे ऐसा सीजन का नहीं था यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे ये रेनी सीजन के पहले ही होगा। और प्रोडक्शन ये हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है फूड रिक्वायरमेंट करने के लिए, इसलिए लोग हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, बल्ब्स एंड रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट पे करते हैं। तो बल्ब्स एंड रूट्स फॉरेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो इसकी ये है रूट्स, ये है रूट्स। और ये जो ऐसा मोटा सा है इसको बोलते हैं बल्ब। ये हमारा स्प्रिंग अनियन है, हरा कांदा जिसको बोलते हैं, चाइनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो दीज आर बल्ब्स, दीज आर बल्ब्स एंड दीज आर रूट्स। आई होप इट्स क्लियर कि बल्ब एंड रूट्स होते क्या है ना। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैंने ये किया था। ओके, नाउ अगेन कम बैक टू दी टॉपिक। और इंटेंसिव और ये खत्म हो चुका है शिफ्टिंग। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। इंटेंसिव का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, छोटे से लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना। मैं मेरी बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी ही एनिमेट एनर्जी ही यूज़ करता हूँ। वहाँ पर डेवलपिंग रीजन्स में सबसे ज़्यादा दिखती है। वहाँ पे क्या होता है कि मैं उतनी ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ जितनी मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी भी नहीं, क्योंकि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़मीन कम है। और ये चीज़ की क्या होती है कि कल्टीवेटर की इनकम टोटली इस पर ही डिपेंड करती है। अगर ये है तो अगर ये अच्छी हुई तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ये नहीं हुई तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब। सो इस तरह से ही चलता है। ओके, उसके अलावा शिफ्टिंग में देखते हैं। शिफ्टिंग में क्या होता है, मैं एक जगह उगाता हूँ, फिर जो भी ट्रीज शब्स वगैरह जो होते हैं उनको सबको काट देता हूँ, ज़मीन में जो भी बच जाता है उनको सबका आग लगा देता हूँ, जला देता हूँ। आग जलाने के बाद वो जो ऐश बन जाता है, ऐश सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वो साल के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैन्योर में। दैट्स गुड। तो उसको मैं बोलता हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये रेनी सीजन के पहले ही सब कुछ होता है। उसके बाद इसमें फूड की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम आती है, इसलिए लोग हंटिंग फिशिंग भी करते हैं। और उसके बाद जो बल्ब्स वगैरह जो होते हैं फॉरेस्ट से निकलते हैं, बल्ब्स और रूट्स, वो सब भी बेचते हैं। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, ये जो कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है ना, उसमें ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर, 4 चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेन फार्मिंग। तो ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे फार्म साइज इज ग्रेटर देन 200 हेक्टर, कहाँ पे ग्रेन साइज में, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 40 हेक्टर्स, मतलब प्लांट छोटा होता है और ग्रेन ज़्यादा होता है। और डेफिनेटली आप ये फ्रूट से ज़्यादा वेजिटेबल खाओगे, फ्रूट्स हो नहीं हो, वेजिटेबल ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज फार्म साइज होती है, पॉपुलेशन स्पार्स मतलब कम होती है। तो दिस टाइप इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन लाइक ट्रैक्टर्स, क्रशर। देखो क्या है, बहुत बड़ा खेत है और काम करने वाले सिर्फ 2। अब 2 लोग इतने बड़े खेत में कैसे काम। सो फॉर दैट पर्पस आई यूज्ड मशीन्स। ठीक है, मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, क्रशर्स, पेस्टिसाइड्स की मशीन्स, जो मैं एरोप्लेन के मदद से उसको क्या करता हूँ, पूरे उसको स्प्रे करता हूँ, सो दैट कीड़े मकोड़े ना लगे। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्ट्स और कीड़े जो होते हैं वो क्रॉप को खा जाते हैं, तो वो ना लगे इसलिए मैं पेस्टिसाइड्स छिड़कता हूँ। और यहाँ पे एक ही क्रॉप होती है जनरली, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक ही, अगर गेहूँ उगाना तो सिर्फ गेहूँ होगा। ठीक है, वीट है, कॉर्न है, बार्ली, ओट्स, सोयाबीन भी किया जाता है थोड़ा एक्सटेंट तक। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, क्रशर खरीदूंगा, पेस्टिसाइड्स की मशीन खरीदूंगा, एरोप्लेन का यूज़ करूंगा, सो देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी आउटफ्लो ऑफ मनी, एंड हेंस देयर इज हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम इज एक्सटेंसिव ग्रीन फार्मिंग आर। प्रॉब्लम क्या है ये फार्मिंग में कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं है, अवेलेबिलिटी पानी नहीं है तो क्रॉप उगेंगे नहीं, वो एक सबसे बड़ा है। फिर कीड़े जो हो जाते हैं, पेस्ट जो होते हैं, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट। अभी देखो लोकस्ट का अटैक आया था, ध्यान होगा, तो लोकस्ट आए थे बहुत सारे, वो सारे क्रॉप्स को खा गए। ठीक है, टिड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, सपोज मैं उगा तो लूँ वीट, बट वीट का भाव कभी इतना ऊपर है, कभी नीचे हो गया, कभी ऊपर है, कभी नीचे, सो दैट डिस्टर्ब्स माई प्रॉफिट।
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स रीजन। ऐसी टेम्परेट रीजन में होती है जहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा उगते हैं, क्योंकि वहीं पे ये चीज़ उगेगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये 200 है तो ये 40 हेक्टर है, 40 हेक्टर्स। प्लांटेशन इज प्रैक्टिस इन हिली ट्रैक्ट्स। यहाँ पे मैं मशीन नहीं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि हिल पे मशीन ले जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लोकल मैन पावर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मशीन यूज़ करता हूँ। डिफरेंस देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस जो होती है उस हिसाब से मैं क्रॉप लेता हूँ। ऐसा नहीं कि वीट कॉर्न जरूरी करना है। जोग्राफिकल कंडीशंस बोलती है कि वीट होगा तो वीट होगा, नहीं होगा तो वहाँ पे राइस कर लो, डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल कंडीशंस। बट यहाँ पे भी सिंगल क्रॉप ही प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं होता है, बट ओनली कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, कोको, स्पाइसेस, प्लांट। ठीक, एक बार ध्यान रखना जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि यहाँ पे एक्सटेंसिव में जितने भी सीरियल्स वगैरह होंगे वो वीट, कॉर्न, राई, बार्ली, ओट्स, सोयाबीन वगैरह। बट यहाँ पे ये सब नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, टी, कॉफी, रबर, तो ये सब ज़्यादा पैसे। इनफैक्ट टी, कॉफी, रबर इतना कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वीट हो ना हो पूरे वर्ल्ड में, बट टी पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, कोको, ये जो है दिस आर कैश क्रॉप्स। इन लोगों को कैश क्रॉप्स बोलते हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि इनको उगाने से, इनको कल्टीवेशन करने से आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, नारियल पानी जो होता है, नारियल पानी एक 50 रुपये में बिकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो अगर मैं कितने, अगर 550,000 नारियल उगाता हूँ टोटल एक साल में, तो कितना पैसा मिलेगा मुझे, है ना। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिगन एंड स्प्रेड मोस्टली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे, तो ठीक है 1800s में आए थे ना ब्रिटिशर्स, 1900 वगैरह। तो तब ब्रिटिशर्स वगैरह ये प्लानिंग करते थे क्योंकि उन लोग को वहाँ पे, उन लोग के कंट्री में ये सब चीज़ नहीं होती थी, टी, कॉफ़ी, रबर, तो यहाँ से उगाते थे, यहाँ से सस्ते दाम में लेके जाते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था। चलो वो सब छोड़ो, आज आज़ादी मिल गई, कम से कम उतना हैप्पी रहे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, देखो ये जो है टी, कॉफ़ी, रबर को टाइम लगता है ग्रो। वीट, बार्ली ये सब फटाफट हो जाते हैं, बट टी, कॉफ़ी, रबर कैश क्रॉप्स है, बट इन लोगों का टाइम। अगर आप कोकोनट का ट्री देखेंगे ना, उगने में बहुत टाइम लगता है, 4-5 साल भी लग जाएगा एक ट्री जो इतना बड़ा होएगा, फिर उसमें से कोकोनट्स निकले, इसलिए वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है काफ़ी। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स करना पड़ता है। मैंने बोला ना, कोई अपने कंट्री में लेके जाते थे, ब्रिटिश में मतलब इंग्लैंड में लेके जाते, सोचो इंग्लैंड में लेके जाने का खर्चा होगा। सो वो सब होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, क्लाइमेट है, मैन पावर कभी मिले नहीं मिले, डिटोरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट खराब हो गया कभी, इकोनॉमिक एंड मैनेजरल प्रॉब्लम्स हो गई, आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। चलो मार्केट गार्डनिंग क्या है, देखो मार्केट का मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ भी चीज़ या तो बेची जाती है या तो खरीदी जाती है, ठीक है। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बेचना भी पॉसिबल है और खरीदना भी पॉसिबल है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो उसको बोलते हैं सब्जी मार्केट जा रहे हो। सब्जी मार्केट क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सब्जी बेचने वाला भी है और आप खरीदने वाले भी। तो जैसे ही कोई चीज़ बेच रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है। जैसे आई एम प्लानिंग टू सेल माई टमाटोज, तो आई एम सप्लाइंग टमाटोज, सो इट्स अ सप्लाई। बट वेन एवर कस्टमर कम्स टू बाय दैट टमाटोज, तो ही इज डिमांडिंग द टमाटोज, भैया 1 किलो दे देना, तो वो डिमांड कर रहा है मेरे से। तो यहाँ से एक सप्लाई आ रही है और यहाँ से एक डिमांड आ रही है। तो सप्लाई और डिमांड एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सप्लाई, ये वाला सप्लाई और ये डिमांड, सप्लाई डिमांड है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिस वजह से कोई भी प्रोडक्ट की, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा टमाटो, उसकी प्राइस डिसाइड हो। अगर डिमांड ज़्यादा है और माल कम, जैसे बहुत सारे लोग टमाटर लेना है लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं, तो मैं वो कम टमाटर को ऐसे ज़्यादा भाव में बेचना चाहूँगा जिससे मुझे ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा प्रॉफिट। सो उस वजह से होती है ये प्राइस राइज। अब कभी भी देखेंगे टमाटर के भाव बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम। तो ये इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझा रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। ऐसा गार्डनिंग जो मार्केट के एकदम पास में हो, ताकि मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना हो, ट्रक में लेके जाना ना पड़े, इसलिए इसको मैं ट्रक मार्केटिंग भी बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें, दिस टाइप ऑफ इज आल्सो नोन एज व्हाट, ट्रक फार्म। मार्केट के एकदम रेडिली अवेलेबल होता है, अर्बनाइजेशन के पास रेडी मार्केट्स अवेलेबल, इसलिए मैं वहीं पे करता हूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स उगाता हूँ और अदर आइटम्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नियर बाय, पास में अर्बन सेंटर्स के, ताकि मुझे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना ना पड़े। डिमांड सप्लाई पे जो मैंने बता दिया वो। यूज ऑफ इरिगेशन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लो इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ मैन पावर, डिमांड ऑफ मार्केट, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग। सब देखो, जितने भी अलग अलग टाइप के फार्मिंग ना, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना है। इट इज डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देखो माल जो बहुत सारा हो गया, वो थोड़े जगह भले नजदीक है लेकिन लेके तो जाना पड़ेगा, तो उस वजह से मैं एक ही साथ ट्रक में लेके चले जाता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ट्रक फार्मिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज आल्सो नोन एज व्हाट, ट्रक फार्मिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हॉर्टी फ्लोरी। देखो हॉर्टी फ्लोरी एक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। हॉर्टी बड़ा भाई है, फ्लोरी जो है उसका वो छोटा भाई है।
तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होती है सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग, fruits and flowers are the major products of this type of farming. In this type of farming modern as well as traditional methods are used. ठीक है, इसमें fruits और flowers वगैरह होते हैं. The size of farm is small and every plant is cared for properly. Okay, यहाँ पे छोटे छोटे साइज होते हैं फार्म के और एवरी प्लांट को जो है वो कैरिंग होता है. ये इस तरह से फ्लोरिकल्चर होता है. यहाँ पे सिर्फ ठीक है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सीन होता था यहाँ पे, है ना. यहाँ से काजल वाक़ आ रही है, यहाँ से हमारे शाहरुख भाई जा रहे हैं, दोनों मिलते हैं इस वादियों में. तो ये उस टाइप को जो था वो फ्लोरिकल्चर था. ठीक है, देखो अभी आज के टाइम में मैं यूज ऑफ इरिगेशन कर सकता हूँ. केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं बहुत लोग. ग्रीन हाउसेज जो मैंने बताया कि आयरन पाइप्स लो, शीट कवर बना दो, तो उसमें टेम्परेचर हीट वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ. इस वजह से क्या हो रहा है, मुझे गेटिंग मोर प्रॉफिट मिल रहा है. ओके, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है, एक तो लिली फ्लावर होते हैं, जरबेरा फ्लावर होते हैं, टूलिप फ्लावर होते हैं, डालिया फ्लावर्स होते हैं, क्रिसैंथेमम, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा. ये जो फ्लावर्स होते हैं ये अलग अलग. तो ये शायद मैरीगोल्ड का ही प्लांट है मोस्टली, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट दिस सीम्स टू बी मैरीगोल्ड. ओके, दिस फेच अ गुड प्राइस इन द मार्केट. आप एक खरीदने जाओ, ज़्यादा प्राइस मिलेगा. देखो बहुत सारे नेटिव मतलब उस जगह के वो स्पेशल, जैसे आप अगर महाबलेश्वर जाएंगे समटाइम्स, तो महाबलेश्वर में हम देखेंगे जगह जगह यू कैन फाइंड स्ट्रॉबेरीज. तो वो स्ट्रॉबेरीज क्यों वहाँ फेमस है, क्योंकि वो वहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट है जहाँ से स्ट्रॉबेरी क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है. तो स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरीज, ऑरेंजेस वगैरह सब वहाँ मिलते हैं आराम से. तो फ्रूट फार्मिंग की जाती है. ये तो थी प्लांट फार्मिंग. और फ्रूट फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग में क्या होती है, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज एक्सेट्रा वगैरह होती है. तो महाबलेश्वर में मिलता है, पंचकनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एक्सेट्रा वगैरह में होता है ना. नागपुर के संतरे होते हैं फेमस. जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है फ्रांस एंड इटली, वहाँ पे क्या होता है, फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर. अपने इंडिया में भी होता है, बट इंडिया में थोड़ा इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं. ऑर्चर्डरी भी होती है. ऑर्चर्ड मतलब गार्डन्स, गार्डन्स में जहाँ पे मैं फ्लावर्स वगैरह और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह करता हूँ. ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो ऑर्गेनिक वर्ड्स, ऑर्गेनिक मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं. मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें मैं केमिकल की मिलावट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पेस्टिसाइड्स की मिलावट नहीं कर रहा हूँ. मतलब जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इज नेचुरल, इज रियल, इज नॉट केमिकल और इज नॉट फेक. ठीक है, तो सबसे पहले कैसे मैं बनाता हूँ, तो देखो ये ऐसा एक एरिया है. ये एरिया में क्या करेगा, जो कचरा होता है, ठीक है, तो वेस्ट, तो वेस्ट एक ग्राउंड में भर लो. जैसे एक ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में मैंने वेस्ट डम कर दिया. सेबानिया और जूट इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, तो वो ग्रास होती है जिससे, ताकि वो कीड़े अट्रैक्ट हो. काउडंग जो गोबर वगैरह होता है, एंड कंपोस्ट मैन्योर्स, जो मैन्योर्स वगैरह होती है, जो खाद वगैरह होती है, वो इसमें मैं यूज़ करता हूँ. वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अगर मैं सपोज वेजिटेबल्स खाता हूँ तो वेजिटेबल्स का जो कचरा बच जाता है, तो वो कचरा मैं कहीं इकट्ठा कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ. सिर्फ जो भी चीज़ मैंने डाली हो अभी तक नेचुरली थी, ग्रासेस डाले मैंने, लीटर डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, काउडंग डाला, कंपोस्ट डाला. ठीक है, तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों है. एक कंपोस्ट होता है, एक वर्मी कंपोस्ट होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं. तो ये सब चीज़ अगर मैं यूज़ करके फार्मिंग यूज़ करता हूँ, ऑल वेस्टर्न मेथड्स यूज़ करता हूँ, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग. यहाँ पे दिख रहा है ऑर्गेनिक. तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, अगर सपोज ये सब में ऑर्गेनिक है तो कीड़े आ जाएंगे, तो कीड़े नहीं आए उसके लिए मैं नीम का पत्ता यूज़ करता हूँ. नीम का पत्ता कड़वा होता है, इस वजह से कीड़े नहीं आते. चलो आगे बढ़ते हैं. एग्रो टूरिज्म है. एग्रो टूरिज्म क्या होता है भाई, अभी हम लोग सपोज अर्बन में टूरिज्म करने जाते हैं, तो वहाँ पे तो क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, अम्यूजमेंट पार्क्स होता है, सर्वर है, वाटर किंगडम वगैरह वगैरह, सब कुछ है. अर्बन में सब कुछ मिला है, सिटी में सब कुछ मिला है, बट वॉट अबाउट रूरल, रूरल में कुछ भी नहीं. तो जब वो कोई रूरल में जा रहा है तो मतलब वो नेचर के नज़दीक जा रहा है, खेतों के नज़दीक जा रहा है. तो अगर कोई लोग वहाँ पे जाते हैं तो मैं वो डेवलप कर सकता हूँ इन एन एग्रो टूरिज्म. जैसे एक ही बैलगाड़ी पे लोग कितने खुश है, ऐसे घूम रहे हैं, फोटो खिलाते हैं ना. ये देखो खेत वगैरह के पास ऐसे घर है, सो लोग फार्म हाउस वगैरह में जाते हैं. तो ये सब है एग्रो टूरिज्म. तो इट्स अ न्यू फील्ड इन टूरिज्म बेसिकली, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड, लोग उसको देखने आते हैं और वहाँ पे लोग एग्रो टूरिज्म करते हैं. रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स और कल्चर आर यूटिलाइज फॉर एग्रो टूरिज्म. वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ के ही लोग, वो हमें बताते हैं भाई मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह को इसको उगाता हूँ, बारिश आती है तो इसको काट देता हूँ वगैरह वगैरह. क्योंकि हम सिटी एरियाज में ये सब नहीं है, मुंबई में ये सब देख नहीं पाओगे, गाँव साइड में, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे उसको क्या करें, देखने जाते हैं रूरल एरिया में. चलो, तो यही होता है एग्रो टूरिज्म. इट्स अ कॉन्सेप्ट कि भाई लोग गांव में एग्रीकल्चर को एज ए टूरिज्म देखने आए, तो वहाँ से उसका रेवेन्यू भी जनरेट हो. ठीक है, जो पे रूरल में जो लोग हैं उनका थोड़ा कमाई भी हो जाए. अभी ये देखो, ब्रेन पावर यूज़ करो, इन सब में से आपको कौन सा अच्छा लगता है. आप ये बनाना खाना चाहोगे कि ये बनाना खाना चाहोगे, ऑफकोर्स ये वाला खाना चाहोगे.
ये वाला खाना चाहोगे, ओह ऑफ कोर्स ये कितना अच्छा शेप है, ये ऑफ कोर्स ये कैरेट कितना अच्छा शेप है, कितना अच्छा कलर है, ऑफ कोर्स ये कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना सिंपल है, यहाँ पे ऐसे थोड़े बहुत दाग वगैरह है, ठीक है। दिस एप्पल सिम्स नाइस, सिम्स अट्रैक्टिव, सिम्स फ्रेश। तो देखो यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि कभी कभी ये सब जो आते हैं और ये जो खराब हो गए, ठीक है, ये सब जो खराब हो गए, आप घर में इसको 3 दिन रख देना तो ये खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा ये सब। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग केमिकल यूज करते हैं। अभी देखो इतनी डिमांड है, अभी देखो आम का सीजन गर्मी का है, लेकिन आम तो माज़ा बनाने के लिए हमेशा यूज़ होता है, आप माज़ा हमेशा पीते हो, ठंडी में भी माज़ा है, तो वो कहाँ से आता है? तो केमिकल बना के मैंगोज़ को उगाता हूँ, मैंगोज़ को उगाने के बाद वो माज़ा में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो 12 महीने चलते रहती है। सो इन दैट सिनेरियो आई हैव टू यूज़ व्हाट केमिकल। तो केमिकल यूज़ करने की वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्ग यूज़ के लिए नहीं होता है, ऐसा सड़ जाता है, ऐसा खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यही हो रहा है कि you may have realized those fruits and vegetables fresh and attractive may not have been ripened using proper methods। जो fresh and attractive लग रहे हैं वो प्रॉपर मेथड से नहीं बने, वो शायद केमिकल बने हुए हैं, ना इंजेक्शन मार दिया, तो उस वजह से ऐसे भी बन सकते हैं। In order to get the produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely। ठीक है, आर्टिफिशियल केमिकल यूज करता हूँ, कीड़े मकोड़े पेस्टिसाइड्स का यूज करता हूँ, एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, इस वजह से मेरा प्रोडक्शन क्यूकर हो जाता है और प्रोडक्ट्स एकदम फ्रेश लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, वो देखते कितना अच्छा है, बट एक्चुअली वो क्या है, प्रोडक्ट खराब। However, such products are harmful to health क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल यूज किया हुआ है। Also, they do not last long, 2-3 दिन में खराब हो जाए। ओके, अब आते हैं मार्केटिंग सिस्टम्स में। देखो अब तो सपोज मैंने फार्मिंग है, मैंने फार्मिंग कर लिया, गेहूं उगा दिया, अब उसको बेचना है कैसे? तो बेचने के लिए आता है एक मार्केटिंग सिस्टम। और मार्केटिंग सिस्टम काम कैसा करता है? तो फार्मर जो उगाएगा वो जाएगा मंडीज में, ठीक है, मंडीज का नाम सुना ना कि ये मंडी है, मंडी। तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC। यहाँ पे है, डोंट वरी, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसको बोलते हैं APMC। तो अपने मुंबई में एक भी APMC नहीं है। मुंबई के नियर बाय एक वाशी में है APMC, और दादर में एक ऐसा मंडी टाइप लगता है। तो मंडी क्या होता है, जहाँ पे सब फार्मर्स एक जगह मिलते हैं और वो मंडी पे होलसेलर्स गए, तो फार्मर्स मंडी के पास गए और मंडी के पास कौन गया, होलसेलर। फार्मर और होलसेलर दोनों मिलते हैं, होलसेलर फार्मर से क्या खरीदेंगे, सब सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स वगैरह जितने भी सब खरीद लेंगे और सुबह सुबह लेके आके उन लोग दिन भर पूरा बेचते हैं। तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने हमको बेचा, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग सिस्टम चाहिए क्यों? तो ये सब पॉइंट्स उसमें दिए कि भाई एग्रीकल्चर इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज। इंडिया इतना बड़ा है, एग्रीकल्चर कहाँ कोने में हो रहा है, खाने वाले लोग हैं सिटी में। अब मुंबई में तो ज़्यादा एग्रीकल्चर हो नहीं रहा, तो एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है, एकदम नासिक नागपुर साइड। तो वहाँ से लाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत है। तो जितने भी फार्मर्स हैं वो एक तरह मिले नहीं हुए, ऑर्गेनाइज नहीं है, एक प्लेस पे नहीं है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो प्लेटफॉर्म लाने के लिए उनको एग्रीकल्चर कमेटी बिठाई जाती है। और बहुत सारे इकोनॉमिक वीक है, मतलब फार्मर्स को इतने रिच नहीं है, पैसे नहीं जो एडवर्टाइज कर सके, तो इस वजह से मैं उनका मार्केटिंग करता हूँ। कौन मैं? मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी हर तालुका में होती है। तालुका मतलब जो एक, जैसे अंधेरी से बोरीवली एक तालुका होगा, तो उस एक तालिका में एक कमेटी होगी जो अंधेरी से बोरीवली में जितने भी माल उगेंगे उनका मार्केटिंग करें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा, मतलब अंधेरी मुंबई में नहीं होता, गाँव साइड में होता है ऐसा, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस लेके आते हैं और वो इनको ट्रेडर्स को बेचते हैं, और ट्रेडर्स से हम क्या खरीदते हैं, रोज सब्जियाँ। अच्छा देखो, और भी क्यों जरूरत है कि तो पेरिशेबल होता है। अभी सपोज सब्जी मैंने 3 दिन में नहीं बेच पाया, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए फार्म को 3 दिन में बेचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज फार्म प्रोड्यूस पेरिशेबल, देयर हैज टू बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट्स सेल। इस वजह से फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर सोसाइटीज बनती है, तो ये टास्क में हेल्प करते हैं। ओके, तो कोई कोई जो फार्मर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट, मैंने बोला जैसे आम माजा के लिए यूज होता है, वो डायरेक्ट कंपनी में भी बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। तो माजा बनाने के लिए आम का रॉ मटेरियल चाहिए। और कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे इंडिया के जो मैंगोज है वो काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन मार्केट्स में, तो इंटरनेशनल मार्केट भी है अपने प्रोड्यूस का। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक मार्केटर चाहिए जो अपने प्रोडक्ट को बेच सके वहाँ पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई किलो के भाव बेच रहे, अच्छे से बॉक्स में पैकिंग करेंगे, उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगाएंगे, ओके टेस्टेड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब करेंगे, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी वगैरह वगैरह,
ठीक है। और इंटरनेट पे भी आजकल एडवर्टीजमेंट होता है, तो लोकल में भी बिकता है और इंटरनेशनल। और फार्मिंग इन इसराइल देखते हैं। देखो इसराइल जो देश है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसराइल, अब मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना, इसराइल जो है वहाँ पे एकदम डेजर्ट है, मतलब वहाँ पे इतना कल्टीवेशन का लैंड नहीं है और ना ही वहाँ पे अच्छी वाटर रिवर्स वगैरह है। बट फिर भी इसराइल जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर है फ्रेश फार्म प्रोड्यूस का। तो कैसे हुआ? देखो इसराइल के पास नेचुरल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है थोड़ी बहुत, बट इतनी अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ की। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर करके, भले नेचुरल बहुत पानी इतना नहीं है तो इरीगेशन वगैरह लेके आ गया, ग्रीन हाउस फार्मिंग वगैरह बना दिया, उस वजह से वो फार्म जो है फार्मिंग बहुत अच्छे से करता है और वो एक्सपोर्ट करता है फ्रेश फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, भले वो एडवर्स क्लाइमेट है, सीवियर स्कैसिटी ऑफ वाटर है और डेजर्ट्स है, हॉट डेजर्ट्स वगैरह, बट फिर भी उसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके एक जायंट लीप किया है इन द फील्ड, मतलब जायंट जंप मारा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि उसने एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी यूज की है। सो डन, आई होप इट्स क्लियर। एग्रीकल्चर पेपर पूरा घर पे एक बार खाली लेक्चर अच्छे से देख लेना तो ऑल क्लियर हो जाए। कुछ भी डाउट्स हो, आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क घर बैठे पढ़ो टीम, दे विल आस्क मी एंड आई विल सॉल्व योर डाउट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।